Good morning, students. Now, today I will discuss about the some terminology related to lens one by one. It has necessity to understand the image formation by the lenses or the nature of lens in so many aspects. So here we discuss about these terms: aperture, optical center, principal axis, principal focus, focal length, focal plane, and power of a lens one by one. As all of you know that there are two types of lenses, mainly two types. That is concave lens, convex lens, convex lens, and here this is concave lens. Right? Convex lens, concave lens. There are two boundaries, right? Bounded by two surfaces. I will discuss already in previous class. That is called optical center, and there are two focus, f1 and f2. That is f1, that is f2. In similar way, there are also two focus, f1 and f2. Right? Now, first of all, I want to discuss about aperture. Aperture is the space or area through which the रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. एक्सपोजर एरिया है जितना पूरे पे लाइट फॉल्स करेगा. जैसे मान लीजिए इसका नाम देते हैं एल एल डैश. एल एल डैश दैट इज द एरिया ऑफ द लेंस ऑन विच द रे फॉल्स. राइट? एंड आफ्टर फॉलिंग they will be converged because that is the converging lens. Right? Or that will be also the exposure area in the case of concave lens. Right? All of you already written the definition of aperture. Second, optical center. Optical center is the point inside the lens. Right? If any ray passes through this point, they do not deviate from its path of propagation. Or in other words, you can say that there is no refraction takes place when the incident ray passes through optical center. That is optical centers. समझते जाओगे अस्थिर से. Now, the optical center हो गया. That is the point inside the lens. If any ray passes through that point, there is no any change in the direction of propagation of the incident ray. That is incident ray. Principal axis. A line, that line which passes through the optical center and joins the two focus f1 and f2 of the lens. Right? That is called, that will be what? Principal axis. In this case, also it is principal axis. Right? Now, what about principal focus? Right? Principal focus. There are two focus of a lens, f1 and f2. Am I right? So that can be
discuss separately in such a way. To focus F1 and F2, all the incident ray parallel to the principal axis after refraction, they pass through the focus. Actually, that focus is called principal focus of the lens. Right? Converge कर रहा है. In this case also, what happens? Incident ray parallel principal axis that moves in such a way. I will also discuss about that. After progressing in backward direction, that is focus. Right? That is focus of the part of the concave lens. That is focus of convex lens. Right? यहाँ पर देखिए, that is the reason why the convex lens is called converging lens, because it converges the incident ray parallel to the principal axis after refraction. They meet at a point. That point is called principal focus of the convex lens. So in such a way define the principal focus of a convex lens. All the incident ray parallel to the principal axis after refraction, they meet at a point on the principal axis. Right? That point is known as principal focus of the convex lens. In this case, how you can define the principal focus of a concave lens? Right? The incident ray parallel to the principal axis after refraction through concave lens, they appear to come. What appears? This refracted ray appears to come from a point on the principal axis. That point is known as the principal focus of what? Of concave lens. I repeat it again because sometimes children are unable to define the principal focus, especially in case of concave lens. So I repeat it. The incident ray parallel to the principal axis of concave lens after refraction, they appears to come from a point at the principal axis. That point is known as principal focus of what? Of concave lens. Right? Of concave lens. इस तरह से आप ये समझ जाओगे, है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कॉनकेव प्रिंसिपल फोकस को. राइट? अब आगे बताते हैं. फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. राइट? ये देखो F1 जैसे हो जाएगा F2 because there are two focus, so there may be two focal length, two radius of curvature, but you discuss about that F1 F2 का वैल्यू क्या क्या होगा, ये आप 12 क्लास में जानोगे. इसके रिलेटेड फॉर्मूला है. राइट? लेकिन हम यहाँ लेके चलते हैं कि F1 F2 सब इक्वल है. राइट? ऐसा हम लेके चल रहे हैं. हमेशा ऐसा नहीं होता है. राइट? ये भी जानना पड़ेगा. अब देखिए, चलो फोकल लेंथ क्या आ गया? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस. अभी प्रिंसिपल फोकस का कॉमन टर्म यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस. राइट? नाउ फोकल प्लेन. राइट? फोकल प्लेन क्या होता है? दैट इज द इमेजिनरी प्लेन which is perpendicular on the principal focus. Suppose principal focus ये प्लेन है.
a plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focus. फोकस से पास हो रहा है और वो क्या है, फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे ये फोकस है और इस तरह से प्लेन जा रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द फोकल प्लेन और दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो imaginary plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focus, then that will be called focal plane, right. Now I want to discuss especially about the power and the principal focus again. So first of all I discuss here, come in order, power of a lens. डिप्रेशन में बहुत मैथमेटिकल डिफरेंशन है, नॉट सो क्लियर। फोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर is called as power. That is the mathematical concept. That is not give the actual idea about the physics, right. From this formula you can easily find out the power of a lens. You can also define the power of a lens is the focal of its focal length in meter and SI it is diopter, right, capital D. But from this definition you cannot get extra knowledge or extra thing. What is the meaning of power? That is the method of calculation of power only, right. अब देखिए कॉन्केव लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा, इसका काम क्या होगा, राइट। टू कन्वर्ज द लाइट, कन्वर्जिंग लेंस, टू कन्वर्ज द लाइट ऑन द फोकस ऑफ कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं। इस केस में क्या होगा हम देखिए बताते हैं, आपको समझाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए आप लीजिए एक लेंस को इस तरह से, राइट, ये यहां से आ रहा है और यहां से क्या होगा, मुड़ेगा, ये फोकस होगा इसका, राइट। तो क्या हुआ, दैट इज, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ये लेंस नहीं होता तो व्हाट हैपेंस, ये इतने एंगल से क्या होता, थीटा एंगल से, या डेविएशन मान लेते हैं, मान लो डेल्टा, इतना से डेविएट करता, इतना से एंगल से उसको मोड़ देता। मतलब when this lens come in path of this incident ray IR, right, then what happens, this incident ray turn back by this amount due to the presence of this lens, right, am I right। अब एक लेंस और ले लेते हैं, ये थोड़ा दूल्हा पतला है, एक मोटा लेंस ले लेते हैं, देखो ये इससे मोटा है। अब देखो क्या होता है, जितनी हाइट पे ये है उतने हाइट पे हम इसको भी लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जानते हो माय डियर, इसका फोकस थोड़ा सा और इसके करीब आएगा, फोकल लेंथ कम होता है, मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, कम होगा तो यहां से जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू, ये मान लो डेल्टा 1 है, इसका वैल्यू डेल्टा 2 है। देखो क्या देख रहे हो, डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2 और डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1। तो पावर इसका क्या हुआ, ये ज्यादा अमाउंट से क्या किया, उसको रे को, इंसिडेंट रे को ज्यादा अमाउंट्स बाय मोर अमाउंट दैट कन्वर्ज द इंसिडेंट रे, राइट। So that is the concept of by what extent, by what amount the incident ray converges by the convex lens, है ना, that is the function of lens as well as the concept of physics, right। मतलब इसका स्पष्ट हुआ कि कौन सा लेंस हम लेंगे जो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ज्यादा उचित होगा, है ना। हम कितने अमाउंट से रे को हम बेंड कराना चाह रहे हैं, राइट,
that will depends upon the converging nature of the lens. उसी तरह से इस केस में भी होगा, है ना। अगर आपको ये ज्यादा हो जाएगा इस तरह से और बड़ा कर लेंगे, फोकस जितना नीचे आएगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा एंगल से वो डाइवर्ज होगा, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ये हमने बता दिया आपको। अब आपको ये समझ में एक और बताना चाह रहे हैं हम, ये इसमें होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कैसे समझोगे, ऐसे आप पहले पढ़े होंगे क्लास 8 में भी, राइट। जनरली जो हम लोग मान लेते हैं इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसके बारे में बताता हूं। जैसे अभी हमने क्या देखा, ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, बात करते हैं F2 माने, लेकिन ये क्या है, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं है। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं सिंपली कि प्रिंसिपल फोकस है, राइट। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम आइडिया आपको देंगे। इसे देखिए, इस केस में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। अब जब रे यहां से जा रहा है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट फोकस इज कॉल्ड, मान लो दैट फोकस इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस of the convex lens, right। ये पैरेलल कहां से कटता है, सेकेंड होता है, and a focus at a point on the principal axis when the incident ray passes through that point, right, after refraction through the convex lens, it becomes parallel to the principal axis. In that case, that will be the what, first principal focus. First principal focus of the convex lens, right। लेकिन हम किसको माने, प्रिंसिपल फोकस इसको माने, इसीलिए एफ इसके केस में बताएंगे साइन कन्वेंशन में क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हम करेंगे। लेकिन हम कॉन्वेक्स लेंस का, जब हम फोकल लेंस की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, बोलो, हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस जनरली मान लेते हैं, और इस आधार पे हम लिखते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस का साइन प्लस होता है, राइट। अब देखिए, अब देखो इस केस में क्या होगा, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस केस में तो आपने देख लिया, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्केव लेंस में बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। चलिए यहां भी बनाते हैं, बनाना नहीं है। ये आपका क्या हुआ, इंसिडेंट रे है, यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये आपका IR हुआ, ये आपका RR हुआ, तो चला गया। इसको पीछे की ओर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, 10 होना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूस किया। यहां जहां कट किया इसको आप मान सकते हो F1 माने हैं, आप F2 यहां मान सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये इसका एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन एक्चुअली ये है क्या, दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, ये है। नाउ अब कहोगे सर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, देखो इसमें क्या होता है, मान लो यहां पहले जान रहे हैं इसका F1 ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में क्या होगा, इफ एन इंसिडेंट रे appears to come from a point on the principal axis, देखिए डॉटेड लाइन, ये देखो डॉटेड है, राइट। लेकिन जो ये रे यहां
फॉल्स करेगा, इसके बाद जानते हो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, दैट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इंसिडेंट रे विच appears to fall on a point on the principal axis in such a way that after refraction they becomes parallel to the principal axis. This focus is known as what? First principal focus of the concave lens. That is first principal focus of the concave lens, right? I repeat it again, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं. If the incident ray appears to falls on a point on the principal axis in such a way that after refraction the refracted ray becomes parallel to the principal axis, this particular point is known as प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. चलिए सुविधा क्या से हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे हम लोग लिखा था, इसके फिगर बनाया था, उसमें F1 इधर दिया था. चलो इस केस में F2 इधर रख लोगे, इसमें F1 इधर है ना, यहाँ F2 मान लोगे, इधर F2 मान लोगे, इधर F1 मान लोगे, राइट, ताकि आपको समझने में सुविधा हो. एक्चुअली जो F2 है, राइट, वो क्या है, वो आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 फर्स्ट को कर रहा है. और जनरल वे में हम लोग जो फोकल लेंथ का साइन वगैरह लेते हैं, वो हम जो F2 होता है, ऑप्टिकल सेंटर से F2 जो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस रिस्पेक्टिवली, राइट. और यही कारण है. अब हमें लगता है आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप जब मेरा सेशन चलेगा ऑडियो के माध्यम से आप सुन सकते हो, राइट, क्योंकि अभी तो कोरोना का प्रकोप जारी है और आपसे रूबरू नहीं हो सकते. वीडियो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपसे रूबरू बीच बीच में हो जाते हैं, राइट. मन से पढ़िए, बोर्ड क्लास है और इसी पे आपको मार्क्स भी मिलेगा. हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट हो या आपको मार्क्स मिले, राइट. ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑफिशियल में मिलते जाता है, लेकिन पहले ही आपको सचेत हम कर दे रहे हैं. थैंक यू.